Hello students, today we will read lesson 4, the wheat is cheaper second. Okay, so let's start. Ashok. So the merchant couldn't get any money out of the farmer after all? David. David said, how could he? The farmer didn't cast any doubt on his story. He was really very clever. So Ashok said, if the merchant is clever, he won't cast any doubt on the farmer's story either. So that is how the story is going to end. So Ravi said, no, the farmer made the merchant pay him. So David said, did the merchant cast doubt on the farmer's story? Ravi, no. David said, then how could to make the merchant pay him any money at all? So Ravi said, don't ask me, listen to the farmer's story. So here farmer stories is started. Thank you for this interesting story, said the farmer. But mine is simpler, shall I begin? The merchant said, yes please. The farmer began the story. My father was a farmer. He had a fine horse and a fine saddle to put on it. Every Sunday he used to go on his horse to the market in a neighboring village. People admired the horse and its saddle, and they used to say, what a fine horse, what a fine saddle. One Sunday my father put the saddle on the horse and rode to the market. When he returned home, he found that the horse had a sore on its back. Was it very big? The merchant asked. Yes, the farmer replied, as big as the palm of your hand. Do you know how it got the sore? How can I? Asked the merchant, looking very clever. I only know that the sore was as big as the palm of my hand. It must have given the poor animal a lot of pain. No, it didn't. Though it was as big as the palm of your hand, my father didn't know that the saddle was torn and it had caused the sore. It was the month of June and there was a storm. The poor horse got a lot of dust into the sore, and with the dust some grains of wheat too. Then it rained, and so the grains of wheat began to sprout. What a wonder, said the merchant. But he quickly added, it is quite possible. Grains of wheat sprout when they get a chance. Yes, they sprouted and grew. And then what a fine crop we had. My father had to hire 20 men to reap it. I had done it myself a number of times. Sometimes I used to hire even 40 men when there was a good crop. We had to hire quite a good number of men for reaping. Yes, we had a very good crop and we reaped 40,000 kilos of wheat off the horse back. How lucky your father was. Very lucky indeed, but your father, was poor and starving those days. So he came to my father and begged him to give him 75 kilos of wheat. The merchant was very angry. His father never starved, but he couldn't cast any doubt on the story. So he had to make an effort to hold his tongue. My father, continued the farmer, was a kind and good neighbor. So when he saw your father starving, he gave him 75 kilos of wheat. Your father owes it to my father even to this day. Sometimes I want to go to law about it. The merchant began running his thumb up and down his fingers. He was calculating. Why are you running your thumb up and down your fingers? Are you calculating something? तो प्रीवियस लेसन की लेसन 3 द व्हीट इज चीपर फर्स्ट में हमने बताया था कि मर्चेंट और फार्मर के बीच स्टोरी सुनाने की बात होती है. ठीक है, तो मर्चेंट तो सुना देता है स्टोरी और फार्मर को कोई डाउट भी नहीं होता है. अब लेसन 4 में फार्मर स्टोरी सुनाएगा. ठीक है, देखते हैं मर्चेंट डाउट करता है या नहीं करता है.
तो यहाँ स्टार्टिंग देखें तो अशोक बोलता है कि मतलब अशोक ने, अब आपस में तीनों दोस्तों की बात हो रही है, ठीक है, तो अशोक बोलता है मतलब मर्चेंट ने जो स्टोरी सुनाई फार्मर को, उसमें कोई डाउट नहीं हुआ। तो डेविड कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि फार्मर ने उसकी स्टोरी पर डाउट ही नहीं किया, वो तो बहुत चालाक था, फार्मर बहुत चालाक था। तो अशोक कहता है कि अगर मर्चेंट क्लेवर है, क्लेवर मीन्स चालाक, ठीक है, अगर मर्चेंट क्लेवर होगा तो वो फार्मर की स्टोरी पर डाउट नहीं करेगा लास्ट तक, ठीक है। तो रवि कहता है नहीं, लेकिन फार्मर को मर्चेंट जो है पैसे देगा, पेड करेगा, मतलब फार्मर अपनी स्टोरी से उसको पैसे देने पे मजबूर कर देगा, भले वो डाउट ना करे पर पैसे देने पर मजबूर कर देगा। तो डेविड कहता है कि मतलब फार्मर की स्टोरी पर मर्चेंट डाउट करेगा। तो रवि कहता है नहीं, चलो अपन स्टोरी सुनते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर फिर फार्मर अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है, ठीक है। तो फार्मर बताता है, अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हुए बोलता है कि मेरे जो फादर थे वो एक फार्मर थे, उनके पास बहुत अच्छा घोड़ा था, हॉर्स था, ठीक है, और हॉर्स में एक बहुत अच्छा सुंदर सा सैडल लगा हुआ था। सैडल मीन्स होता है लेदर से बनी हुई एक सीट जो कि घोड़े के ऊपर रखी जाती है, उसके बाद उसमें इंसान बैठते हैं, ठीक है, तो वो वाली सीट। तो वो बहुत अच्छा सैडल था उसके ऊपर। तो हर संडे जो, अब फार्मर स्टोरी सुना रहा है, ठीक है, तो फार्मर बोलता है कि हर संडे मेरे पिताजी जो हैं उस हॉर्स को लेकर मार्केट जाते थे, दूसरे विलेजेस के, पड़ोसी जो विलेजेस होते थे, नेबरिंग विलेज, वहां पर जाते थे। तो लोग जब उनका ये हॉर्स देखते थे और उसका सैडल देखते थे तो वो बहुत खुश हो जाते थे और तारीफें करते थे, और उनकी चाहत ये होती थी कि हमको भी एक बार इस सैडल पर बैठने या इसको यूज करने मिल जाता, ठीक है। तो एक संडे मेरे पापा जो थे, मेरे जो फादर थे, वो उनने सैडल को हॉर्स के ऊपर रखा और उसके बाद मार्केट के लिए निकल गए। अब जब वो वापस हुए तो उनने देखा, जब वो वापस घर आए तो उनने देखा कि हॉर्स के जो पीछे तरफ बैक साइड पे क्या हो चुका था, एक घाव हो चुका था, ठीक है। सॉर मीन्स होता है घाव, ठीक। तो मर्चेंट पूछता है कि वो घाव बहुत बड़ा था। तो फार्मर कहता है हाँ बड़ा तो था, लगभग तुम्हारे हाथ के बराबर, पाम मीन्स होता है हथेली, है ना, तो तुम्हारे पाम जितना बड़ा था, ठीक है। तो अब कहता है फार्मर क्या तुम जानते हो उसको ये घाव कैसे हुआ? तो मर्चेंट कहता मुझे कैसे पता, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो जो सौर था, वो जो घाव था, वो मेरी हथेली, मेरी पाम के बराबर था, ठीक है। तो उस एनिमल को तो बहुत दर्द हुआ होगा, मर्चेंट पूछता है। तो फार्मर बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि जो तुम्हारे पाम के साइज का जो उसका घाव था, है ना, तो मेरे जो फादर थे वो नहीं जानते थे कि सैडल की वजह से उसकी पीठ पर, उसके बैक पर ये इतना बड़ा घाव हो गया है। अब वो जो महीना था वो जून का महीना था और बहुत आंधी तूफान भी चल रही थी, ठीक है। तो वो जो पुअर हॉर्स था, उसके जो सौर था, पीछे जो घाव था, उस पर क्या बहुत सारी डस्ट जमा हो गई, और डस्ट के साथ साथ कुछ वीट के ग्रेन्स भी, मतलब गेहूं, जो कुछ गेहूं के बीज थे वो भी उस डस्ट के ऊपर जमा हो गए। अब वो कैसे जमा हो सकते, क्योंकि घोड़े के ऊपर लाद कर अनाज लेकर आते थे ना उसके पापा, ठीक है, फार्मर के जो पापा रहते थे वो अनाज लेकर आते थे, तो उसी वजह से मतलब कुछ गेहूं के जो सीड्स थे वो भी उसमें गिर गए। अब जून का महीना था, मिट्टी भी थी, गेहूं भी था। अब क्या था, बारिश हुई तो क्या हुआ, वो जो वीट थे वो स्प्राउट होना स्टार्ट हो गए, स्प्राउट मीन्स अंकुरित होना स्टार्ट हो गए। तो मर्चेंट कहता व्हाट अ वंडर, है ना। तो तुरंत फिर फार्मर ने ऐड किया कि हाँ ये तो पॉसिबल था, जो घोड़े के मतलब हॉर्स के पीठ पर जो सौर था, बैक साइड पर जो सौर था, उस पर वीट जो थे वो स्प्राउट हो गए, अंकुरित हो गए, और उसके बाद वो स्प्राउट होने के बाद बड़े हुए, बड़े होने के बाद अच्छी फसल हो गई। और मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो पापा हैं, उनने 20 मेंस, 20 लोग रखे, किस लिए, उस फसल को काटने के लिए, ठीक है। तो कहता है यस वी हैड अ वेरी गुड क्रॉप,
हमें बहुत अच्छी फसल मिली और जब हमने उसकी कटाई की, कटाई और गहाई वाला सिस्टम करके उसमें से 40,000 किलो 40,000 किलो गेहूं हमने हॉर्स के बैक से रीप किया, निकाला, मतलब कटाई करके। तो मर्चेंट कहता है आपके पापा तो बहुत ज्यादा लकी थे। तो बोलता है हाँ, मेरे फादर तो बहुत लकी थे, पर उस समय जो तुम्हारे पापा थे वो उस समय बहुत गरीब थे। अब फार्मर कहता है, देखो मर्चेंट के फादर को कहता है कि जो तुम्हारे फादर थे वो बहुत गरीब थे और उनको खाने का भी अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो मेरे पापा के पास आए और उनने मेरे पापा से बैग मीन्स क्या होता है, भीख में एक प्रकार से, है ना। तो 75 किलोस वीट उनने भीख में मांगा, ठीक है। तो मर्चेंट तो था, उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके पिताजी कभी भी भूख से नहीं मर सकते, है ना। तो फिर भी उसने फार्मर की स्टोरी पर डाउट नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर डाउट करता तो 100 रुपीज देने पड़ते ना। तो फिर क्या किए, जो फार्मर के जो फादर थे उनने मर्चेंट के फादर को 75 किलो वीट दे दिया। और तुम्हारे जो पिताजी हैं वो आज भी हमारे क्या हैं, कर्जदार हैं, ठीक है। तो मर्चेंट अब क्या करने लगा, अपनी अंगूठे और उंगलियां उठाकर, थंब को ऊपर उठाकर, उंगलियां ऊपर उठाकर फिंगर्स को अप डाउन करने लगा। तो फार्मर कहता है ये अपनी फिंगर्स को अप डाउन करके तुम क्या कर रहे हो, कुछ कैलकुलेट कर रहे हो क्या? सो यस आई एम। तो मर्चेंट कहता है हाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो वो मन मन में हिसाब लगाता है, ठीक है। अब हिसाब लगाने के बाद जब वो हिसाब लगाता है तो उसके हिसाब में आते हैं 75 रुपीज, जो कि 100 रुपीज से कम होते हैं। अगर वो डाउट करता तो 100 रुपीज देने पड़ते, ठीक है। पर यहाँ बात उसके पिताजी की आ गई थी, मर्चेंट के फादर की, कि 75 किलो उनने उधार लिया था उनसे, तो 75 किलो का 75 रुपीज होता है। तो उसने क्या किया, मर्चेंट बोलता है कि जो वीट का कॉस्ट है वो 100 रुपीज से कम है, तो मैं तुम्हें उस वीट का प्राइस दे देता हूं। वो फार्मर की तरफ मुड़ता है और उसको 75 रुपीज दे देता है और बोलता है लो ये है तुम्हारे गेहूं मतलब वीट का पैसा, ठीक है। तो फार्मर कहता है थैंक यू, तुम बहुत फेयर और ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, है ना। तो एंड आई लाइक द बार्गेन, और फार्मर कहता है और मुझे ये बार्गेनिंग बहुत पसंद आई। तो रवि कहता है अब उसके बाद और क्या, डेविड isn't the wheat cheaper? So David said, yes, I don't want to cast the doubt on your story. I agree that the wheat is cheaper. तो रवि बोलता है कि डेविड तुम वीट चीपर नहीं हो। तो डेविड बोलता है यस, मैंने तुम्हारी स्टोरी पर कोई डाउट नहीं किया, है ना, और मैं अब एग्री हो गया हूं कि वीट ही क्या है, चीपर है। ओके, सो हियर द स्टोरी इज एंड।